Good morning, dear students. We have started with Gulmohar, lesson number 2, the visit to the mansion. Children, as I have told you that this is a story of Jo March and Laurie. So, Jo March, she used to live in an old brown house, and Laurie, he used to live in a big mansion. Mansion is a very beautiful हाउस. जो लॉरी की क्या होती है? नेबर. और वो अच्छे से जानती है कि उस बड़े से हाउस में केवल 2 ही लोग रहते हैं, एक तो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस और एक उनका ग्रैंडसन लॉरी. एंड जो शी वॉज ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंशन, एंड शी हैज ऑल्सो सीन लॉरी sometimes who looked very lonely and shy to her. उसने कई बार लॉरी को देखा होता है जो उसे बहुत लोनली और शाय दिखाई देता है, और वो क्या डिसाइड करती है कि वो एक दिन लॉरेंस मेंशन जाएगी और ओल्ड मिस्टर लॉरेंस को बोलेगी कि वो लॉरी को घर से बाहर आने दे और उसके साथ खेलने दे, बिकॉज शी वॉन्ट टू बी द फ्रेंड ऑफ लॉरी, क्योंकि वो लॉरी से क्या करना चाहती थी? फ्रेंडशिप. सो एक दिन जब ओल्ड मिस्टर लॉरेंस घर पे नहीं होते हैं तो वो डिसाइड करती है कि वो आज मेंशन जाएगी, मेंशन को विजिट करेगी. और वो मेंशन जाती है तो शी वॉज सो एक्साइटेड, शी वॉज सो हैप्पी टू विजिट द मेंशन, एंड द सेम द लॉरी वॉज ऑल्सो फीलिंग. He was also very excited. He was also very happy because finally he had a guest in his house. कि finally उसके घर में क्या था? कोई guest आया था. Now he was having someone to talk to him. उसके पास कोई था जिससे वो बातें कर सकता था. So let's do the remaining part of the chapter. The pretty one is Mac and the curly haired one is Amy, I believe. Laurie paused. So, Laurie, he said, the prettiest one, I think the prettiest one, she is Mac, and the one with the curly hair is Amy. तो लॉरी कहता है कि वो जो रोजी वन थी वो तो कौन थी? बेथ. और जो सबसे प्रीटिएस्ट है वो कौन है? मैग. एंड द वन विथ कर्ली हेयर, और जिसके कर्ली हेयर है वो कौन है? एमी. ही देन एडेड शाइली, आई ऑफन हियर यू टॉकिंग टू ईच अदर. फिर वो थोड़ा सा शर्माते हुए, शाइली मीन्स शर्माते हुए कहता है, आई ऑफन हियर यू टॉकिंग टू ईच अदर. मैंने कई बार तुमको आपस में बात करते हुए सुना है. सो जो और कितने सिस्टर्स हैं? 4. One is Joe, the second one is Beth, the third one is Mac, and the fourth one is Amy. तो लॉरी कहता है कि मैंने कई बार तुम लोगों को आपस में बात करते हुए सुना है. Sometimes when I see you all sitting around the table with your mother, it's like looking at a picture. So Laurie said that I have often seen you sitting on a table around with your mother and talking to each other, and it's very beautiful to see you sitting like this. तो कहता है कि मैंने कई बार तुम सबको अपनी मदर के साथ एक टेबल पे बैठे हुए देखा है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी पिक्चर को देख रहे हैं. सो चिल्ड्रेन, एज यू कैन सी इन योर बुक्स ऑल्सो, all the 4 sisters, they are sitting around the table with their mother, and you can see Laurie, he's standing outside the window and he's hearing them what they are talking. Laurie poked the fire to hide the sudden trembling of his lips. Children, poke the fire means to move the wood or a coal in the fire with the help of a long stick so that it can burn better. मतलब फायर में वुड या कोल को डालना किसकी हेल्प से? एक बड़ी सी स्टिक की हेल्प से, ताकि वो अच्छे से
जल सके. So Laurie poked the fire to hide the sudden trembling of his lips. Trembling means kapkapana. So to hide the sudden trembling of his lips, he poked the fire. So here it means that Laurie was feeling a little bit shy. That what Joe is thinking, that I have been looking all the people of his family, and just to make a distance from her, he started putting the sticks into the fire. So जो को बड़ा मतलब अजीब लगता है कि मतलब वो बड़ा शाय फील करता है कि लॉरी को बड़ा अजीब लगता है, वो बड़ा शाय फील करता है कि जो को कैसा लगेगा कि मैं उसकी सारी फैमिली को इस तरह से देखता था, उनके सारे कन्वर्सेशंस सुनता था. जो वॉज टच्ड मीन्स फेल्ट सॉरी फॉर हिम. सो जो शी फेल्ट सॉरी फॉर Laurie. While he was unwell and lonely, she was happy at home with her mother and sisters. So she started feeling very unhappy, very sorry, because she said, when you were unwell, I was busy enjoying with my family. I was enjoying with my sisters. जो क्या कहती है, जो को बहुत बुरा लगता है, वो उसके लिए बहुत अनहैप्पी फील करती है, बहुत सॉरी फील करती है कि जब तुम अनवेल थे, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम अकेले थे, तो मैं अपने घर पे अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी. तो जो को लॉरी के लिए बहुत बुरा लगता है. यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, शी सेड जेंटली. मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू. ग्लैड मीन्स हैप्पी टू वेलकम यू. So she said that you can come to my family, you can visit our house, you can enjoy with my sisters and me. तो कहती है कि तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था और मेरी जो मदर है वो तुम्हें देख के, तुम्हें वेलकम करके क्या होती, बहुत ज़्यादा खुश होती. She would be happy to welcome you. And you will have jolly times with my sisters and me. And jolly means happy times, and all of us together had a happy time with each other. और तुम मेरे साथ, मेरी sisters के साथ एक happy time spend कर सकते थे. Wouldn't your grandpa let you? Then she asked, will your grandpa allow you to come? I think he would if I asked. तो लॉरी कहता है आई थिंक ही वुड इफ आई आस्क्ड. अगर मैं पूछता तो शायद वो अलाउ कर देते. ही इज़ वेरी काइंड बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स. चिल्ड्रन, स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? अजनबी, वो लोग जिनको हम नहीं जानते. तो लॉरी कहता है दैट माई ग्रैंडपा, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ वो स्ट्रेंजर्स को, मतलब मैं स्ट्रेंजर्स को क्या करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ. एंड वी शुड नॉट डिस्टर्ब द अदर्स. वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर योर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस. देन जो सेड दैट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, हम कोई अजनबी नहीं है. वी आर योर नेबर्स, हम तुम्हारे नेबर हैं. एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस, और तुम हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे. देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स. आफ्टर दैट both of them started talking about books. उसके बाद दोनों बुक्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं. जो was delighted to find that Laurie also loved books. Delighted, happy. So जो she was very happy to find that Laurie also loved books. उसको ये जान के बहुत खुशी होती है कि जो लॉरी है उसको भी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. And had read more books than her. And he had read more than what Joe had already read. कि लॉरी ने मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब जितनी जो ने बुक्स पढ़ी हैं, लॉरी ने उससे भी ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी हैं. इफ़ यू लाइक देम सो मच, कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी, लॉरी ऑफर्ड. ग्रैंडपा इज़न्ट होम, डोंट बी अफ्रेड. सो व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट? दे वर टॉकिंग अबाउट रीडिंग बुक्स. Laurie said, if you like to read books, then come down to my library. There are a lot of things you would love to do. He also said that don't worry,
grandpa is also not at home. You need not to be afraid. सो लॉरी उसको क्या ऑफर करता है जो को कि अगर तुम्हें बुक्स इतनी अच्छी लगती हैं, बुक्स पढ़ना इतना अच्छा लगता है, तो तुम मेरे साथ मेरी लाइब्रेरी में आओ. एंड डोंट बी अफ्रेड, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा भी घर पे नहीं है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो रिप्लाइड. चिल्ड्रन, रिप्लाई का मतलब होता है टू आंसर, आंसर करना. टॉसिंग अ हेड. सो जो क्या आंसर करती है? टॉसिंग अ हेड, अपना सिर हिलाते हुए. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग. नो नो, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, कि मुझे किसी से डर नहीं लगता. सो चिल्ड्रन, ओनली दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू. Laurie laughed and led her through the room. So hearing this, Laurie laughed, and when they were walking towards the library, they passed through some rooms. और जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो कई सारे रूम से गुजरते हैं. He let her examine. Examine means to check. Whatever struck her fancy means made her curious. So जो she was very much curious. Curious होता है उत्सुक. And was checking everything with very much interest. तो जो क्या होती है, वो बहुत क्यूरियस होती है और सब चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट के साथ क्या करती है, चेक. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी एवरीथिंग. शी वॉज चेकिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली. चिल्ड्रन, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ओनली वी हैव रेड कि जो थी वो उस मेंशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी, और हमेशा सोचा करती थी कि इस मेंशन में और क्या ब्यूटीफुल और क्या डिलाइटफुल थिंग्स होंगी. सो जब उसे मेंशन विजिट करने का मौका मिल रहा है तो वो हर चीज़ को बहुत नाइसली चेक कर रही है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ. शी वॉज लुकिंग एट एवरीथिंग एंड वॉज इवन क्वेश्चनिंग लॉरी व्हेन दे वर मूविंग डाउन द लाइब्रेरी. सो हर चीज़ को वो ध्यान से देख रही है, इवन लॉरी से क्वेश्चन भी कर रही है उन सब चीज़ों के बारे में. At last they reached the library where Joe clapped her hands and danced with delight. So finally they reached the library. और finally वो library पहुंच जाते हैं. And after reaching the library, when she looked at library, जब जो पहुंच जाती है और library को देखती है, she clapped her hands. वो खुशी में clap करती है and she also danced happily. Danced with delight, danced happily. It was lined with books. Lined with books means filled with many rows of books. कि लाइब्रेरी में बहुत सारी रोज थी बुक्स की. And then there were pictures, statues, strange little tables, bronze pieces, and best of all, a great open fireplace with quaint tiles all around it. Children, basically इस पैराग्राफ में हमें लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि लाइब्रेरी में वास्तव में लाइब्रेरी कैसी दिखती थी या लाइब्रेरी में क्या क्या था. सो लाइब्रेरी में पिक्चर्स थी, स्टैचूज थे, लिटिल टेबल्स, छोटी छोटी टेबल्स थी, ब्रॉन्ज पीसेस मतलब सब एंटीक्स, सब वैल्यूबल आइटम्स थे. आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट या कोई डेकोरेटिव आइटम्स. और सब में वहाँ पे सबसे अच्छा क्या था, फायर प्लेस, जिसके चारों तरफ, क्वेंट का मतलब क्या होता है, ओल्ड फैशन, मतलब टाइल्स लगी हुई थी. आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जो कि ओल्ड हाउस होते हैं वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे द फायर इट केप्ट ऑन बर्निंग, और उसके ऊपर शेल्फ बनी होती है जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं, पेंटिंग्स वगैरह रखी होती हैं. सो व्हाट रिचनेस, साइड जो, सिंकिंग इनटू अ चेयर एंड गेजिंग अराउंड हर. सिंकिंग इनटू अ चेयर मीन्स लोअरिंग हरसेल्फ जेंटली इनटू अ चेयर. यू कैन से मतलब चेयर पे बैठते हुए. सो जो क्या कहती है, वॉट रिचनेस, वॉट अ वंडरफुल लाइब्रेरी इट इज, कि कितनी सुंदर लाइब्रेरी है. थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड. अब चिल्ड्रेन, लॉरेंस का फुल नेम क्या है, थियोडोर लॉरेंस. जो कहती है यू शुड बी द हैप्पीएस्ट, मतलब तुम इस वर्ल्ड के सबसे हैप्पीएस्ट बॉय हो. क्यों? बिकॉज तुम्हारे पास इतना बड़ा मेंशन है, तुम्हारे पास इतनी सुंदर, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें इतनी सारी एंटीक थिंग्स है, इतनी वैल्यूबल थिंग्स है, तो तुमसे ज्यादा इस वर्ल्ड में कौन हैप्पी हो सकता है. नो वन कैन लिव ऑन बुक्स, सैड लॉरी, शेकिंग हिज हेड एज ही पर्स्ड ऑन अ टेबल. पर्स्ड मीन्स सिट ऑन समथिंग, सो ही सिट ऑन अ टेबल. सो
लॉरी अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नो वन कैन लिव ऑन बुक्स. Nobody in the world can live on books because he had no friends, he had never visited anywhere. क्यों? क्योंकि ना तो उसका कोई फ्रेंड था, ना वो कभी किसी के घर जाता था, ना उसके घर कोई आता था. तो वो कहता है कि बुक्स पे थोड़ी ना कोई जिंदा रह सकता है. Just then a bell rang and Joe flew up, alarmed. It's your grandpa. What shall I do? So just then they heard the bell ringing and Joe was afraid and he stood up very fast from the chair and asked, is it your grandpa? What should I do? तभी बेल बजती है और जो फटाफट अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और लॉरी से पूछती है, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा है? अब मैं क्या करूं? वेल, what if it is? You said you are not afraid of anything, remember? said Lorry, laughing. So Lorry said, what if my grandpa is there? तो लॉरी कहता है, क्या फर्क पड़ता अगर मेरे ग्रैंडपा है? You said you are not afraid of anything, remember? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या कहा था कि तुम किसी से नहीं डरती? said Lorry, laughing. लॉरी ने हंसते हुए कहा. But it was only the doctor who had come to check on Lorry. It was the doctor who had come to check on Lorry. लेकिन कौन था? डॉक्टर, जो कि लॉरी को चेक करने आया था. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था that Lorry was feeling cold and his throat was also not good. There was a pain in his throat. Would you mind if I let you for a minute? Lorry asked. So Lorry said, would you mind if I just leave you in the library for a minute? I'm just coming after a minute. Joe said, okay, fine. So Lorry से पूछता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें लाइब्रेरी में कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ दूं? जो कहती है, नहीं, it's fine. Joe shook her head and went off to look at a portrait. Portrait means a painting, a photograph of old Mr. Lawrence. So after saying this, she started looking at one of the portrait of old Mr. Lawrence. और ऐसा कह के वो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस की एक पेंटिंग होती है, फोटोग्राफ होता है, उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है. She was still standing before the portrait when the door opened again. So she was standing and she was looking at the portrait and suddenly the door got open. तो जो खड़ी है और किसको देख रही है? पोर्ट्रेट को. तभी सडनली से अचानक से डोर खुलता है, दरवाजा खुलता है. जो did not turn as she said, I won't be afraid of your grandpa. He looks stern. Stern means serious, strict, but he has kind eyes and I like him. So she even without turning, she said that I'm not afraid of your grandpa. And I have seen your grandpa. He looks strict, but his eyes are very kind and I like him. तो बिना टर्न हुए, बिना ये देखे कि डोर पे कौन है, जो क्या कहती है कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से डर नहीं लगता. और मैंने उन्हें कई बार देखा है, वो बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस दिखाई देते हैं, बट उनकी जो आईज है वो कैसी है? बहुत ही काइंड, और मैं उन्हें पसंद करती हूँ. आई लाइक हिम. थैंक यू मैम, said a gruff voice behind her. So when she was looking towards the portrait, now some voice came and he said, thank you so much ma'am. And it was very rough voice. Children, you have seen the voice of the old people. They are bit rough, bit slow. So it was that type of voice. So she just turned so it was that type of voice. Gruff means rough. So उसको अपने पीछे से एक आवाज आती है, ठीक है, बहुत ही रफ सी आवाज आती है, थैंक यू मैम. And there, to Joe's great dismay, stood old Mr. Lawrence. Dismay, जब हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन होता है, तो जैसी वो टर्न होती है, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता, उसके पीछे कौन खड़े होते हैं? ओल्ड मिस्टर लॉरेंस. Old Mr. Lawrence. So when she was turned, she was feeling very shame, very shy, because earlier she said that she was not afraid of anything.
तो अब उसको क्या होता है, बहुत शेम फील होती है, बहुत वो शाय फील करती है, क्योंकि पहले उसने क्या कहा होता है कि उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता. सो मिस्टर लॉरेंस इज वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी. सो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस ही इनवाइट्स जो दैट कम लेट्स हैव अ टी टुगेदर. सो जो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस होते हैं वो जो को टी के लिए इन्वाइट करते हैं. देयर एज जो एंड लॉरी टॉक मैरिली. सो they were having tea and Mr. Lawrence saw that when Joe and Laurie they were talking to each other they were very happy. तो वहाँ पे जो ओल्ड मिस्टर लॉरेंस होते हैं वो क्या देखते हैं कि जब जो और लॉरी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है. मैरिली मीन्स खुश, हैप्पी. मिस्टर लॉरेंस realizes how lonely Laurie had been and decides to send him to the Marsh house occasionally. So he realized that Laurie was very alone and he decided that from now he will also send Laurie to Joe's house to play. तो उनको तब रियलाइज होता है उन दोनों को साथ में देख के कि जो लॉरी है वो कितना ज़्यादा अपने आप को लोनली, अपने आप को अकेला फील करता है. वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो भी लॉरी को जो के घर पे भेजा करेंगे. मार्च हाउस टू जो मार्च हाउस है ना, जो के घर भेजा करेंगे ओकेजनली, कभी कभार. ओके, सो चिल्ड्रेन, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द स्टोरी. थैंक यू.